Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online mode of learning of this course, Introduction to ICT. As you all know that first part of this course has already been covered up till sessional 1 of this course, and now we are heading towards second part of this course, which is basically Introduction to Programming using Python. So let's formally start the course. First of all, the books that you're going to be using in this course, these are the two textbook. Most of the content that I have covered is taken from both of these books. In due duration of the course, all of the content which basically is covered in the slides is covered from both of these books, and the handouts of these books, chapter wise handouts of these books, will be provided to you in each lecture. Like today's lecture, this week's session has been taken from this particular book, and its handout is provided to you on CU Online in Google Drive link as well. This is another reference book. Either you can use this book or any other beginner level book which covers introduction to Python programming. You can use it. So these are the main contents of this lecture. First of all, we are going to learn about what are languages, then what is a program and what are programming languages. Then we will discuss what is Python language, where it is used, and then we are going to discuss the process of debugging. So speaking of languages, there are two types of languages. Broadly, there are two types of languages. First one of the type is natural language. It is the language which is being spoken by the common people, like English, उर्दू के अंदर जैसे हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे नॉर्मल बात करते हैं. तो नेचुरल लैंग्वेजेस आर बेसिकली these are evolved naturally. These are the languages that people use to communicate with each other. ठीक है. फिर formal, other type of languages are formal languages. These are unlike natural languages. These are designed by the people for specific purpose. उनका कोई specific purpose होता है. Means क्या purpose हो सकता है? For instance they are used to perform some computation. For instance, जैसे अगर आप ये examples दो देखें तो 3+3 is basically a mathematical expression. तो only a person with who knows कि what this expression means, वो उसको पता होगा कि ये इसका इस बात का क्या मतलब है. तो फॉर्मल लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक पर्पस है और एक स्पेसिफिक जो है डिज़ाइन और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं. सिमिलरली जो सेकंड एक्सप्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली एन एक्सप्रेशन फ्रॉम केमिस्ट्री विच इज़ बेसिकली दी केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर. तो बेसिकली ये फॉर्मल लैंग्वेजेस नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल लैंग्वेजेस जो हैं दे वर इवॉल्व नेचुरली. स्पेसिफिक कोई डिज़ाइन नहीं था इनका, लेकिन ऑब्वियसली लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है, ये सब चीज़ें एक लैंग्वेज के अंदर इंक्लूडेड होती हैं. सिमिलरली अगर हम लोग फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन बाय द पीपल फॉर सम स्पेशल पर्पस. किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डिज़ाइन की जाती हैं. किसी भी तरह की वो फॉर्मल लैंग्वेज मैथ्स है, इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आज के लेक्चर में बात करेंगे, तो ये सब की सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं. तो दोनों both kind of languages have some specific syntax. So in the next slide, let's see what is syntax. So syntax are basically the rules that one must follow when we are using some language. So just like in the previous slide we saw that both of the languages have their own
सिंटैक्स। अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम फॉर इंस्टेंस इंग्लिश या उर्दू की बात करते हैं, तो इंग्लिश के अंदर भी जैसे हम लोग टेंसेस की बात करते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट की बात करते हैं, तो दीज आर बेसिकली जो ग्रामर के अंदर जो रूल्स आ रहे होते हैं वो हम कहते हैं कि जी वो आपकी लैंग्वेज के सिंटैक्स है। इसी तरीके से फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर जैसे अगर हम मैथमेटिकल किसी एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो लेट्स से मैं कहती हूँ कि जी 3+3=6, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये एक्सप्रेशन जब आप लिखेंगे तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो कन्वे होगा, और हम कह सकते हैं कि जी सिंटेक्स वाइज दिस इज़ करेक्ट। अगर आप इन नंबर्स को, इन ऑपरेटर्स को प्लस का सिंबल कहीं और लगा दें, नंबर्स की अरेंजमेंट चेंज कर दें, तो सिंटेक्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सिंटेक्स आर बेसिकली द रूल्स जो कि आपको कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हुए यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड इन एनी लैंग्वेज, आइदर इट्स अ नेचुरल लैंग्वेज और इट्स अ फॉर्मल लैंग्वेज। तो टेक्निकली स्पीकिंग syntax consists of tokens and structure, and token are basic elements of languages जिन कंपोनेंट्स से वो लैंग्वेज मिलके बनी है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था 3+3=6, तो 3+ और 6 ये सब के सब क्या हैं, दीज आर दी tokens which are basically the elements of that language, and then the structure is the way tokens are arranged, means कि 3+3=6 को आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर ही जब अरेंज करेंगे तो तभी उसका एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से कन्वे होगी। तो सिंटेक्स किस तरीके से बनता है, टोकन्स बेसिकली आर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, और उनको हम जब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर जब अरेंज करते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो हम सिंटैक्टिकली किसी करेक्ट सिंटेक्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर जब 3+3 इज़, जैसे कि दिस इज़ अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, तो द मीनिंग that this expression is going to convey, it is called parsing. So understanding the meaning of a sentence using token and structure, this concept is called parsing. तो अगर आपने स्ट्रक्चर सही यूज़ नहीं किया हुआ, सिंटेक्स वाइज आपने अरेंज नहीं किया हुआ सही तरीके से, जो लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया हुआ, तो वो आप यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे ये वाली स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये मैथ्स के अंदर जो है दिस इज़ नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं या हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो दोनों के अंदर जैसे मैंने आपको इंग्लिश की एग्जांपल दी है या उर्दू की एग्जांपल हम लेते हैं उनकी बात करें, या फिर हम मैथ्स की बात करें, या फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो दोनों के अंदर जो है वो ये सब फीचर्स जो हैं ये कॉमन है कि टोकन स्ट्रक्चर को स्पेसिफिक यूज़ हो रहा होगा, एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स होता है लैंग्वेज का, और सेकेंडली वो जो एक्सप्रेशंस होती हैं दे आर ऑलवेज कन्वेइंग सम मीनिंग। ठीक है, तो अभी तक हम जो बात यहाँ तक करते आ रहे थे अभी तक, उसमें हमने यही देखा है कि जो भी ये दीज आर बेसिकली दी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो स्पीकिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस फर्स्ट, नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी पाई जाती है। एम्बिग्विटी मीन्स डाउटफुलनेस। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स कि फॉर इंस्टेंस हम अगर किसी भी नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस इंग्लिश या उर्दू की बात करते हैं, तो दो सेम सेंटेंसेस जिनका कंटेंट जो है वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट उन वो एक डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता है कि सेंटेंस या एक्सप्रेशन तो आपकी सेम है, लेकिन वो एम्बिगुअस एक्सप्रेशन है। अब जब तक आपको उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, तब तक आप यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि जी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, देन उस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए और उस डाउटफुलनेस को ख़त्म करने के लिए जो है वो नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर रिडंडेंसी आती है। रिडंडेंसी आने का क्या मतलब है कि जी आप सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़
रिपीटेडली या डिफरेंट तरीक़ों से जब एक्सप्रेस की जाती है तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिडंडेंसी का फैक्टर आ रहा है, ठीक है। फिर नेचुरल लैंग्वेजेस दे आर नॉट ऑलवेज कन्वेइंग द लिटरल मीनिंग। फॉर इंस्टेंस आपने एक बहुत कॉमन इंग्लिश का एक ईडियम सुना हुआ है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर आप इसके लिटरल मीनिंग देखें तो वो तो कैट्स एंड डॉग्स उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो अब एक्चुअल मीनिंग है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बेसिकली क्या है कि जी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज हमेशा अपना लिटरल मीनिंग कन्वे नहीं करती। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स जो है वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, या वहाँ पे जो है वो ईडियम्स का यूज़ किया जा रहा होता है। तो उसकी वजह से जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं दे आर नॉट ऑलवेज कन्वेइंग लिटरल मीनिंग, ठीक है। जो भी पर्सन है, जो भी कम्युनिकेटिंग एंटिटीज़ हैं, दे मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज टू इंटरप्रेट के जी आपके सेंटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर ये तीनों चीज़ें नहीं होती, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो है प्रोग्राम्स आर टोटली अनएम्बिगुअस। प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर रही हैं कि जी आपकी किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन। उसके अंदर रिडंडेंसी नहीं होगी, फालतू में आप चीज़ों को, एक्सप्रेशंस को रिपीट नहीं कर रहे होंगे, एंड दे आर लिटरल, मीन्स कि उसका जो मीनिंग है कॉन्टेक्स्ट वाइज चेंज नहीं होता, एक ही स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो कन्वे कर रही होती हैं। सो दीज आर बेसिकली जो आपके हमारे पास जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ऑब्वियसली दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ विच कैटेगरी किस में आती हैं जी? ये ऑब्वियसली दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर ऑब्वियसली जब हम देखेंगे बाय द टाइम कोर्स के अंदर हम प्रोसीड करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी लिटरल, उनका मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली अंडरस्टूड होना चाहिए, और जिस स्पेसिफिक टास्क को, जिस स्पेसिफिक पर्पस को परफॉर्म करने के लिए वो प्रोग्राम कंपोज किया गया है, वो पर्पस जो है वो फुलफ़िल होना चाहिए, ठीक है जी।